السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں نے کل کے سبق کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر جتنے بھی قاعدے ہیں میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکے ہیں کہ شاید آپ نے 15 قاعدہ اچھی طرح معلوم ہوتے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ لیے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ آج کا جو سبق ہے سورۃ الناس، اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، اسی طرح ہر ایک سورت کو میں آپ کے سامنے پیش کراؤں گا انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں آگے آج کا سبق کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 سورت پیش کیا ہے، تو ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ قاعدہ کے اندر توجہ دیتے ہیں۔ تو شروع کریں۔ قل اعو، آ حرکت ہے، او حروف مدہ، واو سکن سے پہلے پیش آئے اس لیے یہاں میں کھینچا تھا۔ زو حرکت، بی حرکت، رب بن، یہاں میں کیوں کھینچا گیا، یہاں میں کیوں گناہ کیا گیا، کیونکہ یہاں میں نون مشدد آیا۔ آپ نے 10واں قاعدہ میں پڑھا ہے کہ نون مشدد یعنی تشدید والا حروف میں سے نون مشدد اور میم مشدد آنے سے گناہ کہے گا، یعنی نون گناہ اور میم گناہ، ٹھیک ہے نا حضرات؟ تو ان کو یہاں میں بتایا گیا نون گناہ۔ برب الناس، ناس حروف مدہ، الف سے پہلے زبر آیا اور سین جیسی حرکت، اس لیے اس کو ساکن بنا دیا گیا۔ مالک الناس، یہ ما حرکت، لی حرکت، کن گناہ برابر ہے، جو ابھی میں نے سامنے ابھی پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ الہ، ای حرکت، لا الف مدہ کی طرح، کیوں لام کے اوپر کھڑا زبر آیا، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الناس، من شر، من، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ آپ نے 7واں قاعدہ میں پڑھ چکے ہیں، 8واں قاعدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکین اور تنوین جب بھی دکھائی دے تو اس کی بعد والا حروف دیکھنا ہے، اس کے بعد والا حروف جب دیکھا ہے تو اس کا 4 قاعدے نکلتے ہیں۔ ایک ہے اظہار یعنی 7واں قاعدہ، اور نمبر 2 اکفا یعنی 8واں قاعدہ، تو یہ اکفا 15 حروف ہے نا اکفا کا، تا سے شروع کر کے کاف تک، ٹھیک ہے نا؟ تا سا جیم دال زال، زا سین شین صاد ضاد، طا ظا فا قاف کاف، تو یہ شین ہے،
इसलिए नून साकिन के बाद शीन आया तो ये इक्फा हो गया। मिन शर्रिल वस्वा हुरूफ मद्दा, सिल खन गुन्ना, नून गुन्ना, ठीक है। और नून अलिफ ना अलिफ मद्दा, यानी अलिफ से पहले ज़बर आया, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अल्लज़ी हुरूफ मद्दा, युवस्विसु फी, यू हरकत, वी हरकत, यू सू हरकत, फ़ी हुरूफ मद्दा, क्यों या सकिन से पहले ज़ेर आया। सुदू हुरूफ मद्दा, क्यों वाव सकिन से पहले पेश आया। रिन नून गुन्ना, ठीक है, नून मुशद्दद आया। ना अलिफ मद्दा, क्यों अलिफ से पहले ज़बर आया, ठीक है ना ज़रा। मिनल जिन गुन्ना, नून गुन्ना, ठीक है, नून जबर ना हरकत, ती हरकत, वन नून गुन्ना, ना अलिफ मद्दा, क्यों अलिफ से पहले ज़बर आया, सी हरकत साकिन बन जाएगा। तो इसी तरह हर एक में देखिए, कुल आऊज़ बे आ हरकत, ऊ हुरूफ मद्दा व सकिन से पहले पेश आया। तो इसी तरह मैं हर एक कायदा नहीं बताऊंगा, उसमें से कुछ निकाल के मैं आपसे सवाल करेंगे। मेन कौन सा कायदा है? इक्फ़ा, क्यों नून साकिन के बाद इक्फ़ा के 15 हुरूफ में से एक आया, कौन आया? शीन आया, तो इक्फ़ा है, मुंह और नाक से खींच के पढ़ेंगे। मिन शर्र, ठीक है। री कौन सा कायदा है? एक तो हरकत है और दूसरा कायदा इसमें यह भी पाया जा रहा है कि कौन सा है? बारीक, यानी रा के नीचे ज़ेर है, और एक है रा साकिन से पहले ज़ेर है और लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर है, ठीक है। अच्छा, आ जाएगा वो भी इंशाल्लाह। तो आगे चलिए, ख़लक़, ये सब तीनों हरकत है। व मिन वाव हरकत है, मिन इक्फ़ा है। शर्री गासिकिन, गा अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर आया यानी हुरूफ मद्दा। सिंजेर सी हरकत, क़िन इजहार, क्यों तनवीन के बाद इजहार के 6 रूप में से एक आया, कौन आया? हमजा, हमजा हा आइन हा गाइन का, तो खींचेंगे नहीं खींचेंगे क़िन? नहीं, क्योंकि इजहार जल्दी पढ़ते हैं। इज़ा वक़ब, इज़ा वक़ब, ठीक है, हुरूफ मद्दा तीनों हरकत। जब तीनों हरकत हैं तो क्या बन गया? आखिर वाला जो है साकिन बन गया। व मिन शर्रिन, रिन नून गुन्ना, नफ़ा अलिफ मद्दा की तरह, सा अलिफ मद्दा की तरह, ती हरकत। व मिन इक्फ़ा, शर्री हरकत और बारीक। हासिदिन, दिन कौन सा कहता है? तनवीन आया है हमें, तो फ़ौरन बाद वाले हुरूफ देखिए, और ये कौन सा हुरूफ है? हमजा है, तो किसका कायदा हो गया? इजहार का। हासिदिन इज़ा हसद, ठीक है। अगर 15 कायदा अगर आपको अच्छी तरह मालूम होते हैं तो इंशाल्लाह यहाँ में आपको समझने में आसान होगा। अगर आपको 15 कायदा याद नहीं है, भूल गया या हुरूफ भूल गया, तो आपको यहाँ में समझने में मुश्किल होगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 कायदा के अंदर तवज्जो देना पड़ेगा हजरात। अल्लाह ताला आपको खुद समझने की तौफीक अता फरमाएँ। अगर आगे और चलें, कुल हुवल्लाह, कुल हुवल्लाह, वल्लाह, तो ला कौन सा कहता है? एक तो अलिफ मद्दा की तरह है, ठीक है, खराज बार आने की वजह से, और दूसरा पूरे लफ्ज़ अल्लाह ही है, अल्लाहु है ये, तो लफ्ज़ अल्लाह से पहले क्या आया? ज़बर आया। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर हो या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को क्या पढ़ेंगे? पूर पढ़ेंगे, ठीक है, यानी मुंह को गोल करके पढ़ेंगे अल्लाह। जैसे कि हम लोग नमाज नियत लेते हैं अल्लाह अकबर, ये गलत है, अल्लाह अकबर ऐसा बोलना है। अज़ान जब देते हैं तो अल्लाह अकबर बोलते हैं, गलत है वो भी। कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ठीक है ना ज़रा। इसी तरह हर एक चीज़, जैसे कि हम लोग गलत बोलते हैं बहुत से, जैसे कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सब से हम लोग गलत कर रहे हैं। तो खुद समझना है कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर हो, चाहे लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश हो, तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को क्या पढ़ेंगे? पूर पढ़ेंगे, मुंह को गोल करके पढ़ेंगे, ठीक है। अहदुन, देखो यहाँ में तनवीन से ख़त्म किया, जब तनवीन ने ख़त्म किया तो क्या बन जाएगा? कौन सा तनवीन है ये? 2 पेश, 2 ज़बर अगर होने से अलिफ मद्दा बन जाएगा, वो भी आगे आ रहा है इंशाल्लाह। अगर 2 ज़ेर और 2 पेश से अगर ख़त्म कर रहा है, रोक रहा है, और ज़बर ज़ेर पेश से अगर रुक रहा है, तो उस चीज़ को क्या बना देगा? साकिन बना दिया जाएगा। इसलिए अहद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, देखो यहाँ में भी दाल को साकिन बना दिया। लम यलिद, लम कौन सा कहता है? यहाँ में मीम साकिन आया, इसलिए मीम साकिन जब आया तो बाद वाला हुरूफ देखो, यहाँ में ना मीम आया ना बा आया, इसलिए ये इज़हार सफ़वी है, जल्दी पढ़ेंगे। लम यलिद वलम यूलद, लिद, लिद कौन सा कहता है? ये इक़ला, ये हुरूफ कलकला है, नवा कायदा में, नो कायदा में।
आपने पढ़ चुका है हरूफ कल कला 5 है, कुतुबु जद्दीन, काफ त्वा बा जीम दाल। अगर ये 5 साकिन हो, अगर ये 5 हरूफ क्या हो, साकिन हो, और इन 5 हरूफ को कोई दूसरा हरूफ मिला के पढ़ रहा है, जैसे कि देखो ये दाल है, दाल साकिन है, जेजम वाले हरूफ है ना, पढ़ चुके हैं, जेजम वाले हरूफ को क्या कहते हैं, साकिन है, तो ये दाल साकिन है, और दूसरा हरूफ इसको मिला के पढ़ रहे हैं लीद, तो आवाज़ को क्या करेंगे, आवाज़ को लौटाएंगे, आवाज़ को लौटाएंगे, जैसे कि लम यलिद, लम यलिद। हम लोग बहुत से देखते हैं कि बड़े लोग जो है हम लोग का पुराना वाले लोग, वो लोग कैसे पढ़ते हैं, लम यलिद व लम युलद, गलत है सब, ठीक है ना। लम यलिद, लीद, ये 5 हरूफ जो है हमेशा उसको आवाज़ को लौटाना है, यानी रिबाउंड करना है, ठीक है, आवाज़ को लौटाना है। लम यलिद लिद, वलम यूलद लद, देखो वलम यूलद लद, ये कौन सा कहता है, हरूफ कलकला। क्यों, कैसे पता चला, दाल सकिन के साथ कोई दूसरा हरूफ मिला के पढ़ा, ठीक है ना जरा। वलम इज़ारे सफ़वी, या कुल लहू, कुल कौन सा कहता है, देखो कुल, काफ लाम पेश कुल, ये नून सकिन कहाँ छोड़ दिया, ये आप पढ़ चुके हैं नूरानी कायदे के अंदर, ये 15 कायदे के अंदर है, नून साकिन आया, तो ये हमेशा ये ना भूलना कि जब भी नून साकिन कुरान के किसी भी अंदर दिखाई दे नून साकिन, तो तुरंत बाद वाला हरूफ देखना। जब भी तनवीन दिखाई दे बीच में इसी तरह, तो उसके तुरंत बाद वाला हरूफ देना। उसके 4 कायदे निकलते हैं ना, एक है इजहार, दूसरा है इक्फा, तीसरा इकलाब, चौथा है इदगाम यरमलून। तो ये नून साकिन के बाद क्या आया, लाम आया, ये इजहार के 6 हरूफ में से तो नहीं है, हमजा आयन हागा इनका, इक्फा के 15 हरूफ में से वो भी नहीं है, और इकलाब का एक हरूफ जो बा है वो भी नहीं है, इदगाम यरमलून के 6 हरूफ में से, यानी या रा मीम लाम वाव नून यरमलून, तो ये इदगाम यरमलून के 6 हरूफ में से एक है। तो ये नून साकिन के बाद इदगाम यरमलून के 6 हरूफ में से एक आया, तो ये नून जो है ये कौन सा कायदा हो जाएगा, कुन जो है इदगाम लाम। और आप पढ़ चुके हैं कि 2 जगह में नहीं खींचेंगे, इदगाम लाम और इदगाम रा, ठीक है, ये 2 जगह में नहीं खींचेंगे, और बाकी 4 या मीम वाव नून, या मीम वाव नून, ये 4 जगह में खींचेंगे, और बाकी 2 जगह जो है उसमें जल्दी पढ़ेंगे, तो इसलिए यह हमें वलम यकुल लहू कुल, इसको नहीं खींचेंगे, ठीक है। लाम जबरला हरकत हो उल्टा पेश आया, तो कौन सा कहता है, वाव मद्दा की तरह खरा जबर आने से, अली मद्दा की तरह खरा जर आने से, या मद्दा की तरह उल्टा पेश आने से वाव मद्दा की तरह। कुफुवन अहदुन, वन देखो तनवीन आया, बाद वाला हरूफ देखा, हमजा आया, तो हमजा किसके हरूफ में से, इजहार के 6 हरूफ में से, तो वन कौन सा कहता हो जाएगा, इजहार हो जाएगा। बस समझे कि नहीं समझा। कुफुवन तनवीन आया, पहले तनवीन था, जब तनवीन के बाद में इजहार के 6 हरूफ में से एक आ गया, तो उस तनवीन को अब तनवीन नहीं कहेगा, तनवीन को इजहार कहेगा, ठीक है। आ हरकत, हा हरकत, और दोन तनवीन, क्यों, इसके बाद वाला हरूफ देखने का नहीं है, और 2 जबर से 2 पे से रुक रहा है, इसलिए इस तनवीन को क्या बना दिया जाएगा, साकिन बना दिया जाएगा। जब साकिन बना दिया गया तो हरूफ कलकला बना देगा, देख लो, अहद अहद हद बना दिया। तो हज़रत समझ में आया। तो अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इसी तरह हर एक सूरत के अंदर कायदा को अच्छी तरह समझने की तौफीक अता फरमाएं। और इंशाल्लाह इसके बाद से मैं आपको इतना कायदा नहीं पूछूंगा, और 20-20 में से जो जो ज़रूरत पड़े उस कायदा से मैं आपके सामने पेश कराएंगे। और बाकी तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने तिलावत करके कुरान के हर एक सूरत इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेश कराएंगे। और बाकी जो कायदा हैं 20-20 में से मैं आपसे सवाल करेंगे। तो अभी जितने भी आपने इस 2-3 सूरत के अंदर जो आपने कायदा सीखा है और कायदा मालूम किए गए हैं, और 15 कायदा जो आपने नूरानी कायदे के अंदर सीखा है उसको थोड़ा गौर फरमाएं, ताकि कुछ सूरत तक, यानी कुछ सूरत तक अगर आपने कायदा के साथ साथ अगर आपने हिज्जे करें और मेहनत करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।